Hey, hello people, Namaste, Radhe Radhe, welcome to my YouTube channel. Myself Monica, I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of your, and I'm providing to you some free content of related to the business statistics subject, as you know, and I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing chapter number 6, measures of central tendency, and we are doing statistical average of median, right? And there are three methods to compute this median. First was median in individual series, second was median in discrete series, and third is median in continuous series, right? And we have done last two methods, which were median in individual series and median in discrete series, right? Now we are doing median in continuous series, and we have done illustration number 23 related to the median in continuous series, right? So now let's move on the next illustration number 24. Before we start the illustration, we will discuss some uh, topic which is related to unequal class interval. ठीक है? If the class interval of the series are different, median can be computed without revising the data. It means if अगर हमें class interval जो series जो है वो अलग अलग दी हुई है, तो हम median को बिना उस data को revise किए compute कर सकते हैं. ठीक है? The value of I shall remain the gap of class interval in which the median is falling. So I होता है, ठीक है? तो वो value क्या होती है? Class interval के बीच की value होती है, ठीक है? जिसके बीच में मीडियन लाई करता है. जैसे कि देखो, आई का मतलब होता है इंटरवल, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 24 से देखो, फाइंड आउट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग वेज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ सर्टेन फैक्ट्री. तो कुछ फैक्ट्री के हमें वेज डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ द मीडियन, ठीक है? मंथली वेजेस गिवन है 50 to 80, 80 to 100, 100 to 110. अब देखो यहाँ पे जो इंटरवल है 50 और 80 के बीच में वो 30 का है, ठीक है? विच इज़ कॉल्ड आई, राइट? एंड 80 और 100 के बीच में क्या है डिफरेंस है 20 का. 100 और 110 के बीच में क्या गैप है? ओनली 10 का. सो दिस इज़ कॉल्ड द क्लास इंटरवल, राइट? नंबर ऑफ वर्कर्स इसके गिवन है, तो जैसे कि 50 to 80, 80 to 100, 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130, ठीक है? एंड सो ऑन. एंड नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है 30, 127, 140, 240, 176, 135, 20 and 3. A fund is to be raised and it is decided that workers getting less than rupees 120 should contribute 5% of their wages, and those getting more than rupees 120 should contribute 10% of their wages. What sum will be कलेक्टेड? तो यहाँ पे फंड जो है रेज होता है, ठीक है? लेस देन 120 पर 5% वेजेस जो है वो कंट्रीब्यूट होता है, ठीक है, होना चाहिए. और अगर 120 से मोर देन है तो 10% जो है वो कंट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है? जिस गिवन है तो उनको हम एक्स मानेंगे, ठीक है? एंड एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम उनको नोट डाउन करेंगे. 50 to 80, 80 to 100, 110, 100 to 110 एंड सो ऑन. एंड वर्कर्स को हम फ्रीक्वेंसी मानेंगे, उसको भी हम नोट डाउन करेंगे और इनका टोटल करेंगे तो n इक्वल टू 871 आएगा. फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम सी एफ कंप्यूट करेंगे. सी एफ मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो 30 का 30 आएगा, 127 में 30 ऐड करें तो 157, 157 में 140 ऐड करेंगे 297, 297 में 240 ऐड करेंगे 537, ठीक है? 537 में 176 को ऐड करेंगे 713, 713 में 135 ऐड किया 848, 848 में 20 ऐड किया 868, एंड 868 में 3 ऐड किया 871. नाउ median is equal to n by 2th item, then put the value on this formula 871 and divide by 2. 2 को 871 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 435.5th item आएगा. and it lies in class interval 110 and 120 as 435.5th item lies in cumulative frequency 537. एक बात आप याद रखना कि हमें ये लिखना बहुत ज़रूरी होगा जब हम इन क्वेश्चंस को
कंप्यूट करेंगे, ठीक है। सो ओके, सो 435.5 वैल्यू को हम देखेंगे कि सी एफ में कहाँ पे लाई करेगी। सो 537 के नियर में लाई करेगी, बिकॉज जो 297 है वो इससे छोटा हो जाएगा एंड 713 जो है वो इससे बड़ा हो जाएगा, राइट। तो इसलिए 435.5 इसके आसपास लाई करिए। इसके अपोजिट में क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, 110 एंड 120, ठीक है। अब मीडियन का फॉर्मूला पुट करें, L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में I, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मीडियन इन कॉन्टिन्यूस सीरीज, राइट। ठीक है, तो हेयर L1 is equal to 110, n/2 is equal to 435.5, CF is equal to 297, I is equal to 10 and F is equal to 240, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर हम ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं तो इससे इजी होता है, हम इस फॉर्मूला में वैल्यू जो है वो ईज़िली क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो मीडियन इज इक्वल टू L1 क्या है 110 प्लस n/2 435.5 माइनस सी एफ क्या है 297 अपॉन में f क्या हो गया 240 इंटू में I क्या हो गया 10, ठीक है। उसके बाद 110 एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। सो 435.5 में से 297 को हम माइनस करते हैं तो 138.5 आएगा अपॉन में 240 इंटू में 10, ठीक है। फिर उसके बाद इनको कंप्यूट करेंगे। सो 24 को 138.5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 5.77 आएगा एंड 110 में इस वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो 115.77 हमारा आंसर आएगा। उसके बाद हमें इनका फंड जो है वो फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे अब हम फंड फाइंड आउट करेंगे। सो 120 से लेस देन की जो है उसको एक्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे 50 to 80, 80 to 100, 100 to 110, 100 to 120। इसके बाद मिड वैल्यू कंप्यूट करेंगे। सो मिड वैल्यू को कंप्यूट करने का फॉर्मूला आपको पता ही है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। सो 50 प्लस 80 अपॉन में 2 130/2, 130 को 2 से डिवाइड किया तो 65, ठीक है। सेम एज इट इज़ 80 प्लस 100 180, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90, ठीक है। एंड इसका आएगा 105, इसका 115। उसके बाद फ्रिक्वेंसी एज इट इज़ नोट डाउन कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। 30, 110, 140 एंड 240। उसके बाद एफ एम निकालेंगे। सो एफ को मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 65 इंटू 30 इक्वल टू 1950, 90 इंटू 127 इक्वल टू 11,430 एंड 105 इंटू 140 इक्वल टू 40,700 एंड 115 इंटू 240 इक्वल टू 27,600। उसके बाद फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे तो n इक्वल टू 537 आएगा। एफएम का टोटल करेंगे तो 55,680 आएगा। उसके बाद हम फंड कलेक्ट करने के लिए इसका अमाउंट निकालेंगे। सो 55,000 को 680। सो अब इसका हमें फ़ंड कैलकुलेट करने के लिए 55,680 इंटू 5 का 5% तो 5 अपॉन में 100, ठीक है। तो 0 से 0 कट हुआ, 5 इन 5, 5 2 10 और इसको हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो 2784 आएगा। इट इज़ वेरी इजी, राइट। उसके बाद 120 से अबव का जो है उस पर 10% लगेगा। तो 120 to 130, 130 to 150, 150 to 180 एंड 180 to 200 एज इट इज़ हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट डाउन करेंगे एक्स वैल्यू को। उसके बाद मिड वैल्यू कंप्यूट करेंगे सेम एज इट इज़ इन द अबव, लाइक 120 प्लस 130 इक्वल टू 250, 250 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 125, सेम एज इट इज़ आगे की कैलकुलेट करेंगे। सो 140, 165 एंड 190 आएगी। उसके बाद फ्रिक्वेंसी को सेम एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। उसके बाद एफ एम कंप्यूट करेंगे। सो मिड की वैल्यू को एफ की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 125 इंटू 176 अगर करते हैं मल्टीप्लाई तो 20,000 आएगा। उसके बाद 140 को 135 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,900 आएगा एंड 165 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,300 आएगा। उसके बाद 190 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 575 आएगा, 570 आएगा। उसके बाद इसका टोटल करेंगे तो 334 आएगा। इसका टोटल करने पे 44,770 आएगा। उसके ठीक है। उसके बाद हम 44,770 को अगर 10% लगाएंगे तो आपका इसे कैलकुलेट करने पे 4,477 होगा, ठीक है। तो इसका आप टोटल कर देंगे फ़ंड का, ठीक है। इनका टोटल किया तो 7,261 जो है वो टोटल फ़ंड जो है वो आया है।
ठीक है। सो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था वो सॉल्व होगा। आई होप आपको जो समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me on the comment box. Thank you so much. Radhe Radhe. Don't forget to like and subscribe.